I guess we can just start. It's been 10 minutes now. So, yeah, guys, we all are here to discuss about Hack October with Hash Define. This is an event we are organizing under Hash Define organization. So, as we know, Digital Ocean every year organizes Hacktoberfest in the month of October, obviously, to promote open source development. And the idea is to encourage beginners who are absolute beginners in open source development world, and introduce them to the open source development and encourage them to contribute more and more to the existing repositories and also new repositories that have been set up during the Hacktoberfest. And there are several swags and prizes for those who contribute well. So we'll be discussing about all of this today. So before beginning with our today's agenda, let me just introduce myself. So myself Harshit Jain, and I am a third year CSE undergrad student at PPIT. I am a full stack web developer and an open source enthusiast. I participated in Google Summer of Code as a contributor under Jitsi, which is an open source organization. Currently, I am working as an SDE intern at a stealth startup. I'd like to invite Anurag to take over from here. Please, Anurag, go ahead. Hello everyone, am I audible? Yes, Hello. you are. Okay. All right. Hello everyone. I am Anurag Thakur. I am a second year student of CSE from BPIT. I am a C or C++ programmer, and I have participated in Google Summer of Code 2022 in the free type organization. I have also participated in Hacktoberfest 2020 and 21, and I also participated in Google Code in 2019. So as you can see, I'm kind of like an open source veteran. That's basically my experience. So now let's move on with the session. Next slide. All right. Yes. So first of all, we all need to know what is open source. Okay, right. So open source is a philosophy and a development model. Okay. So it let me just read out the points, then I'll explain. It promotes free redistribution and access to code. It supports a collaborative model of development and emphasizes community involvement. So let's try to understand what all of this means. ठीक है. तो कन्वेंशनली क्या होता है कि जो आपका कोड होता है कंपनीज में प्रोग्रामर्स लिखते हैं, कंपनीज को शिप कर देती हैं, उसके बाद वो कोड कंपनी के पास ही रहता है और कहीं नहीं जाता. ठीक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल है विंडोज़ 10, आपके पास आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 रन कर रही है, लेकिन उसका सोर्स कोड आप खुद नहीं देख सकते. उसका सोर्स कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास है, वो आपके साथ शेयर नहीं किया जा रहा है. ओपन सोर्स फिलॉसफी क्या कहती है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका सारा जो सोर्स कोड है वो हम यूजर्स के साथ साथ भी शेयर करेंगे. उस वो सोर्स कोड बेसिकली पब्लिकली एक्सेसिबल होगा कि दुनिया में कोई भी उस सोर्स कोड को आके स्टडी कर सकता है, उससे सीख सकता है, उसमें इम्प्रूव कर सकता है. अ, और जो यहाँ पे लिखा है कि द प्रमोट्स फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू द कोड, कि आप उसका कोड ले करके उसमें चेंजेस करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब खुद किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं. कोई लिमिटेशन नहीं है. जैसे पैटेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें आप कुछ चेंजेस करके किसी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि उस पर उस कंपनी को कॉपीराइट है या फिर पैटेंट है. ओपन सोर्स फिलोसफी इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन दिस. इट सेज कि हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए. वी इट सपोर्ट्स अ कोलैबोरेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि जितने भी प्रोग्रामर्स डेवलपर्स हैं वो कोलैबोरेट करके अच्छे से अच्छा कोड लिख सकें. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. Uh, कर दिया मैंने next. राइट. सो नाउ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट डज फॉस मीन. पहले हमने देखा कि ओपन सोर्स फिलोसफी क्या थी, अब देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है. द सॉफ्टवेयर whose source code is freely available, users can modify it and produce their own software. It can be a community project or a commercial one. It promotes open access to ideas and implementation details. इसका मतलब क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर से, जैसे लाइक प्रोग्रामर्स में सबसे एक पॉपुलर एडिटर है VS कोड. उसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है. आप जा करके गिटहब पे VS कोड का रिपो देख सकते हैं. उसमें सारा जो कोड है आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या एक एक लाइन लिख रखी है. इसका कोड फ्रीली एक्सेसिबल है, कोई आपको पैसे नहीं देने कोड देखने के लिए, आपको गिटहब पे फ्रीली मिल जाएगा. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है फ्री सॉफ्टवेयर का. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लिनक्स कर्नल बहुत फेमस एग्जाम्पल है. द क्रोमियम वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट वो भी एक एग्जाम्पल है. इसका
मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर तो है ही, वो तो आप रन कर रहे हैं अपने डिवाइस पे, लेकिन उसके साथ-साथ आप उसका सोर्स कोड जो लिखा गया है डेवलपर्स के द्वारा, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़र्स कैन मॉडिफाई इट एंड प्रोड्यूस देयर ओन सॉफ्टवेयर। कि आप उस कोड को लेकर के अपना खुद का सॉफ्टवेयर लिखें और डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे जिन लोगों को लिनक्स के बारे में पता है, लिनक्स डिस्ट्रोज़ क्या होती हैं? वो लिनक्स कर्नेल का सोर्स कोड लेती हैं, उनके ऊपर अपने खुद के सॉफ्टवेयर को डाल के, अपना खुद का कोड डाल के, उनको अपने नेम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे डेबियन एक लिनक्स डिस्ट्रो है, उबुंटू जो है वो डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो है। बेसिकली वो डेबियन के कोड पे अपने खुद के चेंजेस ऐड करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट कैन बी अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट और कमर्शियल वन। जनरली ऐसा होता था पहले कि जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स थे वो कम्युनिटी बेस्ड होते थे। जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब बेसिकली है कि कोई इसके पीछे कोई बड़ी कॉर्पोरेशन नहीं है या कोई सेंट्रल हेड नहीं है। एक डिसेंट्रलाइज मैनर में रहता है जहाँ पे बहुत सारे मेंटेनर्स होते हैं जो कोड को लिखते हैं। इसी तरह से जैसे मेरा प्रोजेक्ट है फ्री टाइप, ये भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। लिनक्स कर्नल एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी नहीं है इसके पीछे। लेकिन इसी के साथ साथ कमर्शियल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वी एस कोड एक एग्जाम्पल है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे की एक कंपनी बैक कर रही है। जैसे जावा का भी सोर्स कोड, जावा से बढ़िया एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सोर्स कोड भी पब्लिकली एक्सेसिबल है। लेकिन उसको बैक करने के लिए गूगल की कंपनी है पीछे, जो सारा कोड चेंज है वो गूगल की कंपनी के थ्रू होके जाता है। तो एक सेंट्रलाइज लीडरशिप है उस प्रोजेक्ट की। नाउ नेक्स्ट इज द प्रमोट्स ओपन एक्सेस टू आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। कि जितने भी लाइक सॉफ्टवेयर लिखे जा रहे हैं 30-40 सालों से, उनमें बहुत सारी ऐसी इंजीनियस चीज़ें जो है डेवलपर्स ने विकसित करी होंगी या टेक्निक्स लगाई होंगी जिनका कि हमें नहीं पता। ओपन सोर्स फिलॉसफी ये कहती है कि हम जो कोड लिखे वो लाइक जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स कोड लिख रहे हैं, हम उस कोड को देख करके हम खुद सीख सके उनसे। ये प्रमोट करती है ओपन सोर्स फिलॉसफी। नेक्स्ट स्लाइड। राइट। द बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इतना हमने जान तो लिया ओपन सोर्स क्या है, बेनिफिट क्या है इसके। नंबर वन, हैव कंट्रोल ओवर द कोड रनिंग ऑन योर मशीन। आप जो भी कोड अपनी मशीन पे रन कर रहे हैं, आपको एक एक लाइन का मतलब पता रहता है कि एक एक लाइन क्या एग्जीक्यूट कर रही है। तो कोई भी मेलिशियस कोड आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है, तो वो क्या चीज़ें, क्या कोड रन कर रहा है, आपका क्या डेटा माइक्रोसॉफ्ट के पास भेज रहा है, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उसी की जगह पे जैसे एक ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, उसका सारा कोड आपके पास है। तो आप एक एक लाइन को एग्जामिन कर सकते हैं कि ये क्या डेटा मेरी मशीन से ले रहा है, किस कंपनी को क्या भेज रहा है, और इनफैक्ट उसको आप चेंज करके उस लाइन को हटा भी सकते हैं। सेकेंड इज कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू स्टडी एंड लर्न फ्रॉम। तो लाइक हम लोग अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं जो कि कोड लिखते हैं। हमारे ओपन सोर्स के थ्रू हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम उनकी टेक्निक्स को लर्न कर सकें, स्टडी कर सकें कि वो किस तरह का कोड लिख रहे हैं। कि कहीं ना कहीं लाइक जिन डेवलपर्स के पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमसे कुछ ना कुछ बेहतर ही कोड लिखेंगे, और उनने जो कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स कह लो वो सीखी होंगी, हम उनके कोड को स्टडी करके सीख सकते हैं। ओपन सोर्स ये इस चीज़ को प्रमोट करता है। Now thirdly, availability of source code increases transparency and security। जब आपके पास सोर्स कोड रहता है तो बेसिकली ये वही बात होगी कि आपको पता है कि आपकी मशीन पे क्या रन कर रहा है। जो कंपनी ने आपको सॉफ्टवेयर भेजा है, उसके एक तरह उस पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी है कि भाई मेरे को पता है कि क्या चीज़ रन कर रही है मेरे पीसी पे। और साथ साथ सिक्योरिटी भी है कि बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं उस कोड फ्रीली एक्सेसिबल है, तो कोई भी जा करके उसको स्टडी कर सकता है और कोई भी बग रिपोर्ट फाइल कर सकता है। तो सिक्योरिटी इशूज फाइंड करना ईजी रहता है एज कम्पेयर टू जो सॉफ्टवेयर का कोड आपके पास नहीं है। उसमें आप चाह कर भी कोई बग रिपोर्ट फाइंड नहीं कर सकते कि आपके पास कोड ही नहीं है, तो आप स्टडी कैसे करेंगे कि यहाँ पे कुछ इसमें दिक्कत है इस कोड में। तो इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है कि जितने ज़्यादा लोग उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई भी दिक्कत पहले ही नोटिस में आ जाएगी। फोर्थ वन इज यूजर्स कैन बिल्ड अपॉन कोड एंड डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। लाइक हम डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है नोट जेएस करके, वो आपके बहुत ईजी कर देता है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना। आपको कोई वेबसाइट बनाने के लिए अपना खुद का सर्वर सॉफ्टवेयर खुद से नहीं लिखना होता है, वो ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने लिखा हुआ है, गिटहब पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ जैसे वीएस कोड है, टेक्स्ट एडिटर है, वो ऑलरेडी उसका कोड लिखा जा चुका है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको खुद का एडिटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये इसका ये मतलब है कि आपका जो ऑलरेडी कोड लिखा जा चुका है, आपको हर कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास फ्रीली एक्सेसिबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे कुछ अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आके लाइक जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सब जानते हैं कि तो एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो most of you must have like used an Android phone. Next is VLC media player, VS Code, the text ID, MongoDB, the database system, MySQL, as well as Python programming language, वो भी open source है, and Inkscape, and बहुत सारे ऐसे programs हैं जो कि open source हैं। आप उनको जा करके इंटरनेट पर उनका कोड पढ़ सकते हैं, उन पे इनफैक्ट कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप खुद का कोड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ पे जा करके उनकी वेबसाइट्स पे। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ ओपन सोर्स। ओके, सो चलिए हमने मान सुन लिया कि भाई ओपन सोर्स होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। तो जो मेन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ओपन सोर्स के लिए, तो दो चीज़ें हैं, गिट एंड गिटहब। ये बेसिकली जो ओपन सोर्स का फाउंडेशन है मॉडर्न टाइम्स में, इन्हीं दोनों पे बेस्ड है। पहले ब्रीफ में जान लेते गिट क्या है। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिकली आप इतना मान सकते हैं कि ये आपके कोड की हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। जैसे आज 2 अक्टूबर है, आज मैंने कुछ चेंजेस करे, वो सेव कर दिए। फिर नेक्स्ट 4 अक्टूबर को मैंने कुछ चेंजेस करे, वो सेव कर दिए गिट में। फिर मैंने 6 अक्टूबर को चेंजेस करे, वो सेव कर दिए। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टेट पे आ जाऊँ कि 2 अक्टूबर को जो मैंने कोड लिखा था वो मेरे को चाहिए। तो हमने तो सेव करके ओवरराइट कर दिया, तो हमें कहाँ से मिलेगा कोड। तो गिट जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उससे हम लाइक हिस्ट्री एक्सेस कर सकते हैं अपने पूरे कोड बेस की, कि हमने जो चेंजेस करे किस डेट को हमारा कोड कैसा दिखता था। नेक्स्ट गिटहब। गिटहब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स अपलोड सोर्स कोड एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, लेकिन बेसिकली लाइक पुट इट सिंपली, गिट इज़ अ प्रोग्राम एंड गिटहब इज़ अ वेबसाइट। गिट एक प्रोग्राम है जो कि आप अपने खुद के पीसी पे रन करते हैं, और गिटहब एक वेबसाइट है जिसको कि आप ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि गिट एक तरह से एम एस वर्ड की तरह है। वो एम एस वर्ड आप अपने खुद के पीसी पे रन करते हैं और एक डॉक्यूमेंट फाइल को एडिट करते हैं। गिटहब है गूगल डॉक्स की तरह, एक क्लाउड स्टोरेज की तरह। वहाँ पे आप जाकर के अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को अपलोड कर देते हैं, और वहाँ से आप लिंक भेज सकते हैं दूसरे लोगों को कि वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकें। तो गिट और गिटहब का भी इसी तरह का रिलेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। गिटहब इन अ नटशेल। तो इसको सिंपल वे में जानना चाहें अगर हम, तो गिटहब इज़ अ वेबसाइट एंड अ क्लाउड बेस्ड सर्विस। ठीक है, एक गिटहब एक वेबसाइट है जो कि आप अपने ब्राउजर के थ्रू खोल सकते हैं, और एक क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है कोड होस्टिंग की। बेसिकली आपको जो कोड आपके पास है, आप चाहते हैं कि मैं उसको पूरे दुनिया के साथ शेयर करूँ, तो आपके पास लाइक नॉर्मल तरीके क्या है, आप उसको ड्रॉप बॉक्स पे डाल दीजिए, गूगल डॉक्स पे डाल दें। इससे बेहतर है कि एक प्रॉपर सर्विस बनाई गई गिटहब, जो कि सिर्फ कोड शेयर करने के लिए ही बनाई गई है। उस पे जा करके यू कैन अपलोड योर कोड एंड anyone with the link can access to your code. Okay. Now next, it helps developers store and manage their code. वही बात हुई कि जो डेवलपर्स चाहते हैं कि मैं अपना कोड को क्लाउड में स्टोर करूं और शेयर करूं और मैनेज भी कर सकूं उसको, उसके लिए गिटहब एक बहुत ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी है गिटहब में, दैट यूजर्स कैन फाइल बग रिपोर्ट्स, कंट्रीब्यूट एंड ब्राउज द कोड। कि आपने लाइक अपना कोड अपलोड कर दिया गिटहब पे, अब कोई तीसरा बंदा है वो आकर के आपके कोड को देख सकता है आपने क्या लिखा हुआ है। अगर वो आपका सॉफ्टवेयर है, वो यूज़र आपके सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है, उसको कोई बग उसमें कोई दिक्कत मिलती है सॉफ्टवेयर में, तो वो जाके आप बग रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, लाइक आपको बता सकते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज़ करा, मेरे को ये दिक्कत आई, तो ये इसको ठीक करो। नेक्स्ट इज दे कैन कंट्रीब्यूट एज वेल। जैसे मैंने बताया ओपन सोर्स का बहुत बड़ा एक पार्ट है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कि आप जा करके लाइक बड़ी से बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी आप जा करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर ओपन सोर्स है तो। लाइक मैंने खुद माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट्स में जाके कंट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसमें लाइक बहुत सही अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, लाइक डेवलपर से इंटरेक्ट भी कर सकते हो आप उन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टली ओपन सोर्स के थ्रू। द लास्ट पॉइंट इज इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ग्लोबली पॉपुलर। लाइक आपको कोई पैसा नहीं देना गिटहब एक्सेस करने के लिए, इट इज कम्प्लीटली फ्री, और लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत पॉपुलर सर्विस है, तो ये यूज़ होता है। तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड के थ्रू आपको जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे नहीं कोई लिमिटेड है कि सिर्फ इंडिया के मिलेंगे या सिर्फ एशिया के मिलेंगे, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी डेवलपर्स ओपन सोर्स में पार्ट ले रहे हैं वो गिटहब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। There's one thing I would like to add. There's another service Git called GitLab. It is also very similar to GitHub. You can use that as well, but GitHub is generally the most popular and the most preferred one. So yeah. Yeah, like this year I guess Hacktoberfest is also allowing GitLab as well along with GitHub. Yes.
Yeah. Let's move on to the next slide. अच्छा, गिट इन अ नटशेल। सो इसको समझाने के लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि जो सेव गेम वाली फाइल है उसकी स्लाइड खोली जाए। तो लाइक आप में से काफ़ी लोगों ने GTA के गेम्स खेले होंगे, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जैसे सैन एंड्रियास। तो उसमें ऑप्शन रहता था कि आप अपने जो गेम की स्टेट है उसको सेव कर सकते हैं, लाइक। और वहाँ पे जब आपको गेम खोल रहे होते थे आप, तो आपके पास एक लोड गेम की स्क्रीन आती थी। उसमें जो लास्ट मिशन आपने कंप्लीट कर रखा होता था उसका नाम लिखा रहता था, और जो डेट है आपने जब कंप्लीट करा वो स्टोर रहती थी। तो गिट भी कुछ महीनों में इसी तरह से काम करता है कि आपने एक कोड लिखा, लाइक आज 2 अक्टूबर है, आपने 2 अक्टूबर को कोड लिखा, आपने जा करके उस कोड को गिट में सेव कर दिया। वहाँ पे क्या सेव होगा, एक जो आपने कमिट मैसेज डाला, लाइक इंस्टेड ऑफ द, लाइक यहाँ पे मिशन का नेम आ रहा है। गिट में क्या होता है कि आप एक खुद से मैसेज टाइप करते हैं कि आज मैं 2 अक्टूबर को कोड सेव कर रहा हूँ, इसमें एक ये कमिट मैसेज आ जाएगा। तो आप जब भी गिट की हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको वो मैसेज दिख जाएगा कि मैंने इस तारीख को ये कमिट करा था। उसके साथ साथ जो डेट स्टोर है यहाँ पे, कि लाइक गिट की हिस्ट्री में ये स्टोर हो जाएगा कि मैंने एक सेव पॉइंट आज बनाया, इसमें एक ये सेव पॉइंट का नाम मैंने डाल दिया, जिसको हम कमिट मैसेज कहते हैं गिट की भाषा में, और इसकी डेट डाल दी कि किस डेट को ये कमिट हुआ है। उसके बाद जब एक कमांड होती है गिट लॉग, उससे आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास डिस्प्ले हो जाता है कमिट का मैसेज, यानी कि जो सेव सेव चेक पॉइंट का नेम, उसके साथ साथ जो जिस जिस डेट को आपने कमिट किया था। तो आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि मेरा सोर्स कोड, लाइक इसमें देखिए कि 5 दिसंबर 2021 को मेरा सोर्स कोड कैसा दिखता था। आप उसको गिट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा डिले हो रहा है बस। गिट इन अ नटशेल, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम दैट सेव्स द हिस्ट्री ऑफ कोड। ये एक प्रोग्राम है जिसको आप रन करते हैं अपने पीसी में, और ये आपके कोड की हिस्ट्री को सेव करता जाता है एक अपने खुद के डेटाबेस में। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ सेव गेम और अ चेक पॉइंट सिस्टम। लाइक आपके कोड के लिए एक चेक पॉइंट सिस्टम रहता है ये। नेक्स्ट इज यूजर्स कैन सी हाउ द कोड लुक्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम, लाइक बशर्ते आपने कमिट कर रखा हो। कमिट बेसिकली होता है गिट की भाषा में सेव करना या फिर चेक पॉइंट बना लेना, या फिर जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ी होगी उसमें भी कमिट कमांड होती थी। वो एक तरीके से गिट के डेटाबेस में सेव कर देती है आपके कोड के स्टेट को। और उसके बाद आप हिस्ट्री में नेविगेट कर सकते हैं कि मैं जो जितने कमिट्स मैंने करे थे उसमें से किसी को भी मैं खोल के देख सकता हूँ कि मेरा कोड इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे कैसा दिखता था। इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ आज कमिट करा 2 तारीख को, और कल आपने अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करा तो उसमें कुछ एरर आ गया। उससे आप हिस्ट्री में जाके ये देख सकते हैं कि कौन से कमिट के बाद मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब हो गया, या फिर किसने वो कमिट करा जिसकी वजह से मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया। उस पे जाके आप हिस्ट्री को रिवर्ट कर सकते हैं, तो ताकि आपको लाइक जो इशू सॉल्व हो जाए। और उसके बाद आप उस पे ब्लेम भी चेक कर सकते हैं कि किसने करा था ये काम, ठीक है। तो और मेनली गिट का काम क्या रहता है कि जो मल्टी डेवलपर प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके लिए हम गिट को यूज़ करते हैं कि लाइक एक प्रोजेक्ट पे 5 लोग हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसके कैसे मैनेज करा जाए। लाइक मैंने भी कुछ कोड लिखा, उसको डाल दिया अपने प्रोजेक्ट में, किसी दूसरे बंदे ने भी लिखा, तो एक साथ अगर मैं 2 लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उनको मैंने कुछ कोड डाला, दूसरे बंदे ने वो कोड हटा ही दिया वहाँ से, तो ये कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं हमारे नॉर्मली बिना गिट के। तो गिट कैसे क्या करता है कि ये एक फीचर प्रोवाइड करता है ब्रांचेस का। ब्रांचेस को हम समझ सकते हैं एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री करके। लाइक मेरे को अगर कोई कोड में फीचर डालना है तो मैं पहले अलग से एक ब्रांच बना लूँगा। इस ब्रांच को हम एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन की तरह समझ सकते हैं जो हमारे कोड की पैरेलली चलती रहती है। मुझे जो भी कोड लिखना है मैं उस ऑल्टरनेट ब्रांच में सेव कर दूंगा, और फाइनली जब मेरा सारा काम हो जाएगा, जो मेन ब्रांच है या मेन टाइमलाइन है उसमें जा करके मैं अपने कोड को मर्ज कर दूंगा या फिर ऐड कर दूंगा। इससे क्या होता है कि हर डेवलपर सिर्फ अपनी ब्रांच पे काम करता है, और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता दूसरे डेवलपर के साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको समझना बेहतर रहेगा। वर्जन कंट्रोल, ये क्या है? द सिस्टम्स यूज टू मैनेज चेंजेस टू द कोड। जैसे गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये जो चेंजेस आप कर रहे हैं आपके कोड में उसको मैनेज करता है, स्टोर करता है, और फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप उसको नेविगेट कर सकें हिस्ट्री को। गिट के तरह एक एसवीएन करके भी होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लेकिन ये सारे पुराने हो गए, मेनली गिट ही यूज़ किया जाता है ऑल ऑल द कंपनीज में। तो नेक्स्ट इज कमिट।
checkpoint in Git history, it allows users to navigate the history of code. जैसे मैंने बताया कि वो सैन एंड्रियास वाले एग्जांपल में ये एक तरह से सेव पॉइंट होता है, इसका एक मैसेज रहता है, एक कमिट आईडी रहती है, उस आईडी का यूज़ करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें आपके कोड की स्टेट स्टोर रहती है। आप इसको कमिट पे जा करके देख सकते हैं कि मेरा कोड इस पॉइंट इन टाइम में कैसा था। तो नेक्स्ट इज पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट गिटहब पे काम आती है जब आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, लाइक आपने उनका कोड देखा, उसमें कुछ चेंजेस करे आपने और उनको आप चाहते हैं कि आप अपने चेंजेस को उस ओरिजिनल प्रोजेक्ट में सेंड कर दें, तो वहाँ पे आप पुल रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज फोर, गिटहब पे आपको लाइक कंट्रीब्यूट करना होता है अगर किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप पहले उसकी एक कॉपी बनाएंगे, वो आपके खुद की गिटहब यूजर आईडी के अंदर स्टोर रहेगी, उसको हम फोर्क कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांच। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिकॉर्ड ऑफ एन ऑल्टरनेट हिस्ट्री ऑफ द कोड। इसको इतनी जल्दी समझाना थोड़ा मुश्किल है, हम इसके रिसोर्सेज दे देंगे आपको चैट में। इन ब्रांच को हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दो डेवलपर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो अगर वो सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स कम टू हैकटोबरफेस्ट। ठीक है, हैकटोबरफेस्ट क्या है? तो व्हाट इज हैकटोबरफेस्ट? इट इज एन ईयरली इवेंट दैट इज हेल्ड एनुअली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हर साल होता है ये और पूरे अक्टूबर के महीने में चलता है। इट इनकरेजेस पीपल टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। ठीक है, तो ये इनकरेज करता है कि नए जो प्रोग्रामर्स हैं वो आएँ और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान दें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंट्रीब्यूटर्स कैन विन टी शर्ट्स, स्टिकर्स एज वेल एज अदर स्वैग। तो इसमें हैकटोबरफेस्ट में आप टी शर्ट्स और स्टिकर्स तो जीत ही सकते हैं, उसके साथ साथ और कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्वैग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको लाइक हम वो भी वेबसाइट शेयर कर देंगे कि आपको किस प्रोजेक्ट में क्या मिल सकता है, आप वहाँ पे देख लीजिए। द लास्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स हैव टू सेंड 4 अप्रूव्ड पीआरस टू बी सक्सेसफुल। तो आपको किसी भी ओवरऑल इस 1 मंथ की ड्यूरेशन में 4 ऐसी पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी होती हैं। बेसिकली कंट्रीब्यूशन करना होता है गिटहब के प्रोजेक्ट्स पे जो कि अप्रूव हो जाए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एक टी शर्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। How to participate, right? So first of all, you'll have to register on hacktoberfest.com using your GitHub ID. The second step is you'd have to send pull requests to projects with the Hacktoberfest tag. Now third, you'd have to work with project maintainers to get your PRs merged. Now last point, the participants who get at least 4 approved PRs are eligible for a T-shirt. तो आपको रजिस्टर कर देना है पहले, फिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं जिन जो कि आपके लाइक एबिलिटी से मैच करते हो, वहाँ पे आपको जाके कोड के कंट्रीब्यूशंस करना है या फिर कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। लाइक ज़रूरी नहीं कि वो कोड का ही हो, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपकी पुल रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट हो जाती है एटलीस्ट 4, तो आपको एक हैकटोबर फेस्ट की टी शर्ट की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। Questions regarding participation. So, do I need to know programming to contribute? No, absolutely not. Hacktoberfest में ज़रूरी नहीं कि आपको कोई प्रोग्राम लैंग्वेज आती ही हो, आप लो कोड या फिर नो कोड कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करना या फिर उनकी गिटहब की जो प्रोजेक्ट है उसको सही करना, या फिर जैसे आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह के और भी तरह के देयर आर वेज दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह होगी, आप उनके लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोडिंग ही करनी है। नाउ कैन आई सेंड मोर देन 4 पीआर्स? यस एब्सोल्युटली, कोई लिमिट नहीं है कितने पीआर्स आप सेंड कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आपको टी शर्ट के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 4 एक्सेप्टेड पीआर्स होनी चाहिए आपके पास। तो नेक्स्ट पॉइंट, कैन आई सेंड पीआर्स टू एनी रिपोजिटरी? नहीं, आपको जो जिस रिपोजिटरी पे हैकटोबरफेस्ट का टैग है, आपको सिर्फ उसी रिपोजिटरी पे पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी है एलिजिबिलिटी के लिए। नाउ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हर्षित भैया टू टेक ओवर फ्रॉम हियर। Yeah, sure. So let us first see how we can register for the Hacktoberfest. What you simply need to do is you need to be signed in to GitHub with your account. It's very easy to make an account on GitHub. You can just sign up with your email and get an GitHub account. Next, what you need to do is you need to go to the hacktoberfest.com website. That is their official website. Here you just need to click on registrations now open, and you can proceed with either GitHub or GitLab. आपके पास जो भी अकाउंट है यू कैन प्रोसीड विद दैट। आई हैव गेटअप, तो मैं इस पर इनिशिएट पर क्लिक करता हूँ। सो आई जस्ट नीड टू ऑथराइज हैकटोबरफेस्ट विद माय गेटअप एंड इट्स completely safe. There are no issues with that.
Now will come a form, a basic form, which is for my registration with Hacktoberfest, right? So I just need to ensure कि मैं इसमें सही वाले अपने जो भी मेरे पे अप्लाई होता है टैग, लाइक इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग एज अ कंट्रीब्यूटर, तो आई विल जस्ट चेक कंट्रीब्यूटर. अगर आप किसी भी रिपोजिटरी को, किसी प्रोजेक्ट को लेट्स से मेंटेन कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट चेक ऑन मेंटेनर एज वेल एंड यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल वंस. सो यू कैन बी अ मेंटेनर as well as a contributor. So most of you, I guess, would be contributing as a contributor only. So I'll be checking contributor. You can select your experience level, if you are a newbie or experienced, whatever. Whatever kind of way you will like to contribute to Hacktoberfest, आप जैसा अभी अनुराग ने बताया, like you can make code contributions as well as non-code contributions. So whichever is applicable to you, you can just select that. Select your country. And these are all just marketing texts. If you want, you can just sign up for them. You just need to approve all the terms and conditions and the privacy policies, and that's it. You have been registered for Hacktoberfest. Here you can check your profile on Hacktoberfest. Like as you can see, my progress, it's showing 0 out of 4. So what is this for? This is actually the count of the PRs that I have raised under Hacktoberfest so far. तो लाइक जैसे ही मैं एक भी PR रेज करता हूँ, इट विल रिफ्लेक्ट ओवर हियर एंड वंस इट गेट्स मर्ज्ड, इट विल शो इट हैज बीन मर्ज्ड. सो दैट PR वुड बी लाइक सॉलिडिफाइड फॉर हैक्टोबरफेस्ट पर्पस. एंड आपको ऐसे ही 4 PRs मर्ज कराने, दैट्स व्हेन यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द स्वैग्स दैट यू गेट अंडर हैक्टोबरफेस्ट. अब थोड़ा सा एक बार कंट्रीब्यूशन का देख लेते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करना है. लाइक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. एक्चुअली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, लेट्स सी. So once you go to GitHub, you can just check various other organizations. There are several open source organizations. Let us take Hashdefine organization for example. We have several projects set up for Hacktoberfest. You can just recognize any project on GitHub which has this tag Hacktoberfest 22 or Hacktoberfest accepted. That means that project has been accepted in Hacktoberfest. And if you make any worthy contribution to that project and that PR gets merged, that pull request gets merged, what you will have is आपके डैशबोर्ड में आप वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा that PR. So yeah, that's how simple it is. Like I am thinking of contributing to say this project hash whiteboard. Let me just go to this project. Now what you can do is you can go to just the issues tab. आपको यहाँ पे बहुत सारे issues मिल जाएंगे जो already listed हैं, which people have listed. You can just select the issues which have a Hacktoberfest label, right? So you can just go to that issue. You can see what is exactly the issue. आप उसको खुद को assign करवा सकते हैं. And after that you can just raise a PR. So what is a PR? As Anurag just explained, what you'll be just having is okay, let me just take you to this diagram. I guess this would be able to explain you well. See, ये हमारी एक गेट की टाइमलाइन है, जो मास्टर हम कह सकते हैं, मास्टर टाइमलाइन. इस पर बेसिकली हमारा जो कोड है वो प्रोडक्शन में जाता है, राइट? दिस इज एक्चुअली द वन जो कि हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का कहलाएगा. अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से हैश व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास हैश व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल है. इसमें क्या है, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है वेयर आई कैन जस्ट ड्रॉ लाइक अ सिंपल व्हाइट बोर्ड ऐप, राइट? अब मेरे को रियलाइज होता है कि मैं इसमें एक फीचर ऐड कर सकता हूँ, से कि मल्टीपल लोग रियल टाइम में व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें देख पाए, राइट? मल्टीपल लोग आके इफ दे लॉग इन विद देयर अकाउंट्स, तो वो व्हाइट बोर्ड में एक साथ कोलैबोरेट करके ड्रॉ कर सकते हैं कुछ. So I am adding this feature. So what I'll do is I would not like to disturb the way this whole project has been already working. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब मैं वो फीचर ऐड कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ बग्स आए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो चलना ही बंद कर जाए. तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो अफेक्ट हो उसकी वजह से. तो what I'll do is I'll just create a separate branch, right? So this what you see is actually a branch. ये मास्टर ब्रांच का जो ऑलरेडी सारा कोड है वो इसके पास होता है, उसके सारे कमिट्स इसके पास होते हैं. बट ये जब ब्रांच इससे सेपरेट हो गई तो अब ये इससे अलग है. मास्टर अलग चलेगी, ये वाली ब्रांच आगे जैसे जैसे मैं इसमें कमिट्स करते जाऊंगा ये आगे अलग चलेगी. अब मैं इसमें अपना फीचर ऐड करके उनके कमिट्स डालूंगा इसमें.
उसके बाद इस ब्रांच को अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है अभी वाली मेरी ब्रांच बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, मैं इसमें अपना जो फीचर है वो ऐड कर चुका हूँ। नाउ व्हाट आई वुड लाइक इज कि मैं इसको अपने मास्टर ब्रांच में मर्ज करवा पाऊँ, जिससे कि जो हैश व्हाइट बोर्ड का प्रोजेक्ट है वहाँ पे मेरा फीचर रिफ्लेक्ट हो जाए। So what I'll do is there is something called PR. Like you'll just raise a pull request. Ki I would like to merge this branch to the master branch. So you'll just raise a PR. Like as you can see, here are 4 PRs in this project right now. So you'll just give a proper heading to the PR, add a proper description, और आपका commit और आपकी branch यहाँ पर होगी, right? Yeah. So इसको जब भी कोई अप्रूव कर देता है फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, वंस दिस इज अप्रूव्ड एंड इट इज मर्ज्ड, ओके, it should not have any merge conflicts. Like it is a different thing. It would take some time to explain. Like ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कोड बेस, कुछ कोड की लाइंस ऐसी है जिसमें यहाँ पर भी चेंज आ रहा है, मेन वाली ब्रांच में, मास्टर वाली ब्रांच में भी चेंज आ रहा है, और मैंने उसको यहाँ पे भी चेंज किया हुआ है, तो वो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वो आपको रिजॉल्व करने होंगे। बट जनरली आपको अगर आप एज अ बिगिनर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे, बट आते हैं तो यू कैन जस्ट गूगल एंड लर्न। So मैं उसको PR को as soon as it is merged, I'll see in the Hacktoberfest dashboard कि वो PR मेरी merge हो चुकी है, and ऐसे करके if I make 4 contributions in this month, I'll be eligible for the Hacktoberfest swaps. So this is all that we had for this Hacktoberfest eligibility. अगर आप इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो you can just come to this link Hacktoberfest/participation. Here you'll just find all the rules, right? What are the values of Hacktoberfest? What the contributors should be knowing before making a contribution. उसके अलावा there are some good resources here for beginners, for GitHub, for like DigitalOcean is the actual organization which organizes Hacktoberfest. Apart from that, there's one thing that your PR should have, like it should have this Hacktoberfest ka tag. If this tag is not there, it would not be eligible for Hacktoberfest. And once that PR is approved, it should have this Hacktoberfest accepted label. Right. There's one thing. See, getting swags or T-shirts is like not the sole criteria है, right? आपको ऐसा नहीं है कि आप T-shirt के लिए spammy PRs मार रहे हैं, like आप readme में जाके कुछ is को R कर रहे हैं और the को A कर रहे हैं, इतनी छोटी minute चीजों के लिए अगर आप PR raise करते हैं, that is considered to be spam basically. वो ओपन सोर्स कम्युनिटी में बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं है, एंड यू विल बी जस्ट डिस्क्वालिफाइड अगर आप 2 स्पैमी PRs यहाँ पे मारते हैं, यू विल बी जस्ट डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस प्रोग्राम. सो लाइक आई वुड just encourage you to take this Hacktoberfest as a reason to get started with open source development. Your goal is to get familiar with open source development, contribute, and Hacktoberfest is just giving you that chance, that reason to start with open source development. I guess, yeah, that's it about Hacktoberfest. I would like to tell you about a few things about open source in general. See, open source में क्या होता है, like people are very helpful, right? अगर आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इट डजेंट मैटर आपको कितना आता है, वो जो टेक्नोलॉजी है जिस पर वो काम किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको कितना आता है डज नॉट मैटर इफ यू हैव दैट इंटेंट ऑफ मेकिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, मेकिंग अ वर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन. आप क्या कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग एक फिलॉसफी होती है कि आप चीजें करके सीखते हो. मोस्टली डेवलपमेंट में ऐसा ही होता है कि आपको सारी चीजें पहले दिन से नहीं आ सकती. व्हाट यू विल डू इज, आप चीजें स्टार्ट करते हो, उसके बाद जहां आपको प्रॉब्लम आती है यू विल जस्ट गूगल दैट, try to seek help with your mentors or people who are experienced in that particular organization. आप उनसे help seek करते हो and they are always like ready to help you. They just appreciate your intent of making that contribution. So I'll just encourage you to just give it a sincere try to open source development. Or like even if you are a beginner in any technology, you will have several organizations, several open source organization in whichever field you are interested in. You can find them in just go to Google and type in web development. Let me just show you. You can find several projects like that.
I guess most of you are doing web development. You can find about web development. If you are doing mobile development, Android development, iOS development, ML, AI, whatever is the field in tech that you are doing development in, you can find projects related to that, and you can make contributions in that. One more thing I would like to share is like what is the reason why we should just maybe like contribute to open source. इससे बढ़िया हम अपना खुद का कुछ अलग से प्रोजेक्ट क्यों ना बनाएं. This is something that people generally ask and have this doubt. So what I'll say is, see, अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाने जाते हो, what happens is आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना पाओगे. Like your project is not going to be scaled. Like आपके कुछ friends, you mostly would be the ones you will be who will be using that project. तो आपको ना तो स्केल का आइडिया पता लग पाएगा, ना आपको ये पता लग पाएगा कि जब कोई प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में जाता है तो हाउ इट वर्क्स, हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि प्रोजेक्ट एक भी दिन के लिए डाउन नहीं होना चाहिए. लाइक इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. तो ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना के उतना नहीं लग पाएगा, आई वुड से. So this is why I would say कि आप personal projects definitely बनाइए, but give a try to open source development as well. You'll get an idea of working in production environment, right? एक प्रोजेक्ट जो एक्चुअली डिप्लॉयड है, यूजर्स यूज कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, दैट इज समथिंग दैट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ, राइट? सो there's one more thing I'd like to proceed with. So there's something called clean. जब आप open source में contribute कर रहे हो, तो most of the times you are not the only one who's going to contribute, right? There would be many people who will be contributing with you. तो आपका जो कोड है that should be easy to read, easy to understand. अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऐसा कोड दिखे कि लाइक समझ ही नहीं आ रहा कि कोड क्या है, तो लाइक ऑब्वियसली बात है कि आपको भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी. तो एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि जो कोड आप लिख रहे हो दैट शुड बी सच कि कोई भी अगर आकर के उस कोड को सिंपली देखता है, इफ दे हैव सम नॉलेज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, तो उनको समझ आना चाहिए कि हाँ, ये कोड एग्जैक्टली क्या कर रहा है. So it should be all the lines, all the variable names should be self-explanatory. So let me just brief you about what is clean code. Clean code. Clean code is a code that is easy to understand and easy to change. Comments explaining lines of code where required should be there. Like comments are not something जो आपको हर line के बाहर डालने चाहिए. Like it gives a very bad impression. Your lines should be self-explanatory. But जहाँ पर जो आपको लगता है जो piece of code थोड़ा एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसके लिए डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि कमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पे कमेंट डालिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक सेंटेंस में कि एक्चुअली वो पीस ऑफ कोड क्या करता है. उसके अलावा आपके जो वेरिएबल नेम्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए. आप कभी भी लूप में बिगिनर्स जो है आई जे के ये सब वेरिएबल्स यूज करते हैं, सिंगल लेटर वेरिएबल्स कभी नहीं यूज करने चाहिए व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स. योर वेरिएबल्स शुड डिफाइन कि वो वेरिएबल एग्जैक्टली क्या स्टोर करने वाला है और किस काम आने वाला है, राइट? आपका जो कोड है वो प्रॉपरली इंडेंटेड होना चाहिए, लाइक इंडेंटेशन उसकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. उसके अलावा द कमिट मैसेजेस व्हाइल यू मेक गिट कमिट्स, दैट शुड बी प्रॉपर. आपका जो गिट कमिट का मैसेज है वो सिग्निफाई करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस कमिट में ये वाला चेंज किया गया था, सो दैट कभी ऐसा होता है कि आपको वापस आना पड़ता है उस कमिट पे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिकॉग्नाइज एंड अदर्स एज वेल कि अच्छा ठीक है, इस वाले कमिट में यहाँ तक चेंज हुआ था, लेट अस जस्ट गो बैक टू दैट कमिट, और वहाँ से आप वापस से डीबग करना चालू कर सकते हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है. ठीक है. There's one more philosophy in like clean code, that is try. Don't repeat yourself. Like आपको try करना चाहिए कि आप functions का use करें, classes, objects, oops, basically जो methodology होती है उसका use करें. You should not repeat yourself. Like जो आपकी lines आप already लिख चुके हैं वो वाली आपको बार-बार नहीं लिखनी. You should be able to reuse that particular piece of code again and again in your code base. Why clean code is actually required? कि open source development is more about collaboration. Like as I said, you are not the only one contributing. There will be many of the people who will be contributing with you. तो उनके लिए it should be easy to understand for the other contributors. It also makes it easier for you to debug your code.
लाइक कभी आप कुछ बग क्रिएट हो जाता है कहीं पे कोड लाइक नहीं चल रहा, तो यू कैन जस्ट रीड कि हाँ कि कहाँ पर एग्जैक्टली कोड में प्रॉब्लम है। अगर आपने आई जे के डाले आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा वेरिएबल कहाँ पे क्या कैसे फंसा, तो इट विल बी लाइक अ मेस बेसिकली। Also, like clean code makes your code look elegant, and it also makes its maintenance easier and quicker. So like we also have a surprise for all of you guys from Hash Define under Hacktoberfest. Are you guys ready? Let us just reveal the surprise now. So yeah, Hash Define this year has three rewards for people who will be contributing to Hash Define projects which are under Hacktoberfest. The first is Rockstar Contributor. So anyone who has the most approved PRs to Hash Define projects under Hacktoberfest would be awarded this title Rockstar Contributor. There's another title called Clean Master. The one who has the cleanest code and the commit history will be awarded this title, that is Clean Master. There's another title called Speedster. तो जो भी फर्स्ट पर्सन होगा who gets 4 PRs merged, that will be getting Speedster title, and all of these titles would be accompanied with t-shirts and other swags. So get ready to participate in Hacktoberfest with Hashdefine. So this was all, I guess, from our side. If you guys have any questions whatsoever, please go ahead and ask, and we'll try to answer them in the best possible way we can. Yeah, before moving on with the Q&A session, मैं एक लाइक एनेक्डोट टाइप का शेयर करना चाहूँगा कि लाइक आप जो लोग नए हैं गिटहब के मामले में, उनको लाइक ऐसा लग रहा है यार बहुत ओवरवेलमिंग सा है, एकदम से क्या क्या बता दिया। तो ऐसा नहीं है लाइक, हाँ स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल, जब आप नए हो तो आपको लग सकता है कि भाई बहुत ही भयंकर चीज़ें मेरे से नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लाइक मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे गिट का तो कोई आइडिया ही नहीं था। लाइक इंटरनेट सर्फ करते करते मुझे गिटहब की वेबसाइट मिली थी, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना शुरू करा था। जो मैंने अपनी लाइफ की पहली पुल रिक्वेस्ट मारी थी, तो गिट से मेरे को लाइक डर लगता था बेसिकली, कमांड लाइन या फिर गिट या इस सब से मेरे को लगता था भाई कुछ करूँगा तो मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, मैं इसको छूता ही नहीं था। मैं सिर्फ वेबसाइट ब्राउज़र खोल के वेबसाइट पे करता था। तो लाइफ की पहली पीआर मैंने लाइक गिटहब पे जा करके एक-एक फाइल को इंडिविजुअली एडिट करता था। जो कमांड लाइक आप गिट में एक लाइन से आपकी सारी फाइल्स एक बारी में चली जाती हैं, उसके लिए मैं हर फाइल को खोल के खुद एडिट करता था, उसके बाद गिटहब पे जाके कमिट करता था गिटहब से ही। तो वेब वेब लाइक अपने वेब ब्राउज़र में करता था काम। तो ऐसा था लाइक मेरा स्टार्टिंग का। तो लेकिन धीरे-धीरे फिर लाइक चीज़ें सीखते-सीखते अभी मैं काफ़ी कंफर्टेबल पोज़ीशन में हूँ। तो लाइक डरना नहीं है ऐसे किसी को, ठीक है? तो क्योंकि एकदम से लाइक बहुत नई सी चीज़ लगती है स्टार्टिंग में, लाइक अब तो लाइक सब सेकंड ईयर में आ गए, तो थोड़ा बेसिक आइडिया तो सबको आ ही गया होगा। इस पे हम रिसोर्सेज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे जो गिटहब के रिलेटेड। लाइक हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बस थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, तो आराम से हो जाता है ये। और ओपन सोर्स में बेसिकली आपका ऑनेस्ट इंटेंट रहना चाहिए, जैसे भैया ने बोला कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे लोग आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है? That's all from my side. Now you can ask the questions. Like before that, I'd like to show like this is the resource Raj just told you about. This is our video on Get and GitHub, which is there on Hashdefine YouTube channel. You can just subscribe to this channel, and you'll be getting many more useful videos on this channel. Yeah. Like एक anecdote मैं भी share करना चाहूँगा. Like I had a project which was based on basically web automation, right? तो जो सेलेनियम और ये सारी जो वेब टेस्टिंग वाली जो चीज़ होती है, बट उससे पहले मैंने क्या था, मैंने सिर्फ डेवलपमेंट जो होती है वेब में वो ट्राई की थी, लाइक मर्न स्टैक एंड ऑल। तो कभी मेरे को टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन वाली चीज़ मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी, बट आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज आई जस्ट लाइक्ड दैट पर्टिकुलर आइडिया. So what I did is I just went to YouTube and other documentations of Selenium, Python and all these, and I just quickly tried to grab कि मैं कितना यहाँ पे फटाफट grab कर पाऊँ and I can start development. तो मैंने 2-3 दिन ये देखे and I just started developing with that project. But honestly क्योंकि पहले से कुछ experience उसमें था नहीं, तो I faced difficulty. And
luckily I found very good mentors in that organization. उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने उन मेंटर्स को जब रीच किया तो दे वर वेरी हैप्पी टू हेल्प. वो इस बात से ही इतना खुश थे कि आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो एक्सपीरियंस विद दैट टेक्नोलॉजी, बट स्टिल मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था. मैंने कुछ चीज़ें खुद से ट्राई करके भी देखी थी एंड आई जस्ट सेंट देम. लाइक आपको एक प्रॉपर मैसेज भेजना आना चाहिए मेंटर्स को कि हाँ मैं यहाँ तक ये चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ और इसके आगे मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे फंस रहा हूँ, प्लीज़ आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए. तो पीपल आर हैप्पी टू हेल्प. लाइक आपको बिल्कुल ऐसे एकदम न्यूबी बन के नहीं जाना कि मेरे को कुछ नहीं आता, आप मेरे को बस ये बता दो कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ. ऐसा भी कर सकते हो, बट मोस्ट पीपल वुड प्रेफर कि आप कुछ एक पर्टिकुलर इशू लेके जाएं कि हाँ मैं एग्जैक्टली यहाँ पे फंस रहा हूँ, आप मेरे को यहाँ से थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. तो दैट इज ईजियर फॉर पीपल एज वेल टू गाइड यू एंड वो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो या वहाँ से उन लोगों ने मेरे को काफ़ी गाइड किया एंड दैट्स हाउ आई लर्नड वेब ऑटोमेशन पार्ट एज वेल. सो या लाइक ओपन दैट्स अ सोर्स स्मॉल में स्टोरी फ्रॉम माय साइड. स्पून फीडिंग नहीं होती, बेसिकली आपको अपनी तरफ से एफर्ट दिखाना होता है. जैसे भैया ने कहा कि ऐसा नहीं कि भाई जाके बैठ जाओ कि मेरे को करना है और कुछ आइडिया नहीं आपको. आपको अपनी तरफ से पहले एफर्ट डालना होगा, उसके बाद एक ऑनेस्ट मैसेज लिखिए मेंटर्स को या फिर जो मेंटेनर्स हैं उनको कि मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे फंस रहा हूँ, जैसे भैया ने बोला कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आप हेल्प करिए. वो आपको स्पून फीड नहीं करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं. Exactly. सेशन एकता हैज रेज्ड हर हैंड. Good evening, everyone. I'm Ekta. I'm from second year, and I'm so sorry. I joined the webinar late, so I wanted to ask if I could get the access to the recording of today's session. Yeah, we'll upload it on our YouTube channel. Okay, and one more doubt. I didn't know if you have covered something like that. How I read somewhere that if our PR request is recognized as spammy, our account gets deactivated or something like that, that we get disqualified. So can you please explain how we should avoid this, or what exactly does it mean that our request is spammy? Yeah, I'd like to Yeah. take this one. कि Okay. लाइक बेसिकली आपको जनरली लोग क्या करते हैं कि वो जाके एक एक उनके रीडमी में एक वर्ड चेंज कर देंगे. जैसे भैया ने बोला कि द को अ कर देंगे, फॉर का बिकॉज कर देंगे, इस तरह से. तो आपको इस तरह की चेंजेस को अवॉइड करना है. जनरली जो प्रोजेक्ट्स जो हैं हैकटोबरफेस्ट में पार्ट ले रहे होते हैं प्रॉपरली, उन पे ना आप गिटअप पे जाएंगे तो उनके इश्यूज वाले टैब में आपको प्रॉपर इश्यूज मिल जाएंगे हैकटोबरफेस्ट टैग के साथ. तो वहाँ पे आपको उस इशू पे कमेंट कर देना है कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू, तो वो आपको असाइन कर देंगे. तो कि रैदर देन आप कुछ अपनी तरफ से खुद रैंडम कंट्रीब्यूशन करें, आप जा करके वहाँ पे चूज करिए कि ऑलरेडी उन्होंने मार्क कर रखा होता है कि भाई कौन से इश्यूज हैं जहाँ पे हैकटोबरफेस्ट के लिए काम करना बेटर रहेगा. उनमें से आप कोई एक इशू चूज कर लीजिए और उसके ऊपर वर्क करके उसकी पुल रिक्वेस्ट मारिए कि इस इशू से रिलेटेड मैंने ये पीआर सेंड करी है. उसके स्पैम मार्क होने के चांसेस बहुत कम है. अगर आप खुद से एकदम से कुछ कर सेंड करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें लगे ये स्पैम है. और या ऐसा है कि थोड़ी सी लाइक कुछ सब्सटैंशियल चेंज होना चाहिए आपके पुल रिक्वेस्ट में. ठीक है, अगर आप लाइक रीडमी भी इम्प्रूव कर रहे हैं उनका, तो काफ़ी अच्छे से प्रॉपर या तो पहले उनसे ऑलरेडी बात कर लीजिए कि भाई मेरे को रीडमी इम्प्रूव करना है. फिर वो आपको असाइन कर देंगे, आप फिर रीडमी इम्प्रूव करिए. ऐसे रैंडमली सिर्फ एक वर्ड की चेंज करने की पुल रिक्वेस्ट, तो फिर वो तो स्पैम ही हो जाती है बेसिकली. Yes, I have a couple of doubt more. So, firstly, I have heard that when you add DSA codes, uh, your account can get disqualified. Is that true? That after adding DSA codes, many organizations have been disqualified from Hacktober. Yeah, I I just believe that heard is true. somewhere. So this year we are also avoiding adding the DSA or hash defined repository. आपको लाइक So, खुद का ऐड नहीं करना, आप why जो does ऑलरेडी that प्रोजेक्ट happen पार्टिसिपेट कर, actually? ये तो दैट इज लेफ्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइक डिजिटल ओशन. उनकी मर्जी यार, उनने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, उसमें हम क्या. I'd like to add one thing. See, एकता, the thing is, अगर आप DSA का जा करके एक प्रॉब्लम कोई ऐड करते हैं, that is not a very good idea.
कि लाइक वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. बेसिकली डीएसए इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, राइट? ओपन सोर्स में हम डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बट डेफिनेटली वी डू हैव सम प्रोजेक्ट्स जो कि डीएसए में लोगों को हेल्प करते हैं. तो आप या तो क्या करिए कि लाइक यू कैन मेक सम मोर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, राइट? कि अगर आप लेट्स से कुछ ग्राफ्स में कोई ग्राफ्स की प्रॉब्लम जा करके करना चाह रहे हैं, तो आप या तो कोई एल्गोरिदम पूरा ले लीजिए, उसकी 4 5 6 प्रॉब्लम्स जो भी आपको लगे कि हाँ ये एक वेल सूटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहेगा इस एल्गोरिदम को पर्टिकुलर समझने के लिए. तो आप उन सारी प्रॉब्लम्स को एक वेल कमेंटेड तरीके से उनमें एक मे बी लाइक रीडमी या कुछ लाइक मार्कडाउन फाइल जिसमें आप एक्सप्लेन भी करें उनके लॉजिक को, इस तरीके से एक बढ़िया पीआर जा करके अगर आप डालते हैं फॉर डीएसए कोड्स एज वेल, तो वो डेफिनेटली स्पैम में नहीं आता. बट जनरली अवॉइड करना बेटर रहेगा कि आप अगर डीएसए के कोड्स को अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लोग लीड कोड पे जाते हैं, उसके डिस्कस सेक्शन में से कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके और उसको पीआर में डाल देते हैं. तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज अप्रिशिएटेड. Okay, and lastly, can I add a project which is already in my own profile repository, like my own repo project? Can I add the same in another organization's repo? Like they are accepting projects in Python, and I have already made a Python project. Maybe it is complete, or I want. Or it is incomplete and I want other people to contribute to it. So, can I add the same project there? Ekta, you can definitely do that, but I would suggest you a better way. Like आप उस project के maintainer क्यों नहीं बन जाते? Like if you have that project under your own GitHub account, तो you can be a maintainer of that project under Hacktoberfest, and you can ask people to just contribute to your project. Like that Uh, would make but a I more significant remark, I guess. yes, but someone told me that if I add my project under an organization, the reach increases and I'll get more opportunity that people might come and help me out in solving that issue. So, or it doesn't matter. I can even individually post a project under Hacktober tags. Yeah, you have both options open to you. Like whichever way you like. If you feel that you'll get much more reach, like if you add that to a pre-existing Hacktoberfest project, तो आप वो भी कर सकते हो. That's not an issue. Like अगर आप कुछ और changes करके उसमें डालें, तो that would be much more appreciated. But इसमें भी कोई issue नहीं है. Okay, thank you so much. Thanks, Ekta. Anyone else? Guys, feel free to ask any questions. Like हमारे as a beginner बहुत सारे questions थे. We have just cleared our all our doubts in such events. So it is a great chance for you guys. Like please go ahead and ask. यार लेकिन हम कोई बाहर से नहीं है यार, सब सेम ही कॉलेज में हम इनफैक्ट सेम ही क्लास में भी होंगे कहीं तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. हेलो भैया. Yes, Amit. भैया, इज देयर एनी बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लाइक यू कैन रिकमेंड? Yeah, definitely. Like आपको पहले तो ये चूज करना है कि which field do you want to contribute to. एक आप क्या कर रहे हो अभी? लाइक वेब डेवलपमेंट. मैंने काफी सारी प्रोजेक्ट्स देखे हैं रेपोजिटरीज, बट उतना लाइक बिगिनर फ्रेंडली होता नहीं, और एक तो उसमें सेटअप करने में बड़ी दिक्कत आती है अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. हाँ, सेटअप करना थोड़ा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली रहता है, बट आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन में या तो हेल्प ले सकते हो. बट लाइक काफ़ी सारे बिगनर फ्रेंडली भी हैं. लाइक देयर इज वन दिस आई रिमेंबर जॉपलिन करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक नोट टेकिंग ऐप बनाते हैं. सो दैट यू कैन चेक आउट. मॉजिला के काफ़ी सारे हैं. यू कैन जस्ट चेक आउट वेरियस, लाइक आप गूगल कर लीजिए सीधा कि बिगिनर फ्रेंडली ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएगी एक प्रोजेक्ट्स की. इनफैक्ट हैश डिफाइन के प्रोजेक्ट्स भी आई वुड से बिगिनर फ्रेंडली हैं. हाँ, हैश डिफाइन में आप ट्राई कर लीजिए. हम Okay, रिपो के thank लिंक you. शेयर कर देंगे अभी.
पूछो भाई, anyone else questions, any doubts? कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. आई गेस नहीं है, अगर कोई डाउट्स तो ठीक है, फिर रैप अप कर सकते हैं आई गेस. एनीवन एल्स जिसका कोई डाउट रह गया हो? ओके देन. सो इट वाज एन अमेजिंग सेशन गाइस. काफ़ी मज़ा आया. आई गेस आपको भी काफ़ी आपने एंजॉय किया हो, बहुत सारा सीखने को मिला. इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो आप सिंपली हैश डिफाइन के डिस्कॉर्ड सर्वर पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप लाइक यू जस्ट फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस आउट. लाइक नो मैटर कितने बिगनर आप हो, कितना आपको लग रहा है कि मेरे बहुत न्यू भी क्वेश्चंस है, तो फील फ्री टू आस्क. कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई हंसने नहीं वाला. You'll get your answers straight away. So yeah, Anurag, do you have anything to add? नो, बस ये कि लाइक हम अभी रिसोर्सेज शेयर कर देंगे आपके साथ, लाइक ये इवेंट खत्म होने के बाद हैशिफन के रिपोज का, हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह का. सो उसके बाद हमारा इवेंट चालू हो जाएगा, आप फिर पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो. Yeah, so thanks guys